And now I'll call the second most popular man in in the film, in Banraj, Johnny Balraj, Ranbir Kapoor. That's how he and is introduced in the film as well. So that's how he fumbles into the film. And now the first person who actually came on board on the film, much before the film started, somebody who showed her faith much before I even spread out the script anywhere, Anushka Sharma, Rosie Norona. Firstly, I'd like to thank all the members of the media for coming in such large numbers. As you know, this has been our second and important theatrical unit that we released just now as we speak online. The film actually has been open to conjecture from the time that actually it started, and even pre-release, the buzz and banter about it continues. All I have to say personally, I think it's been the most exhilarating experience of my life, being directed by Anurag Kashyap, from a man, from a relationship that began with hate, that has now culminated into intense love, and there is absolutely no pun in that thought. It's really been quite a journey for me in the film, and working under him has been like going to film school. I felt I had to unlearn everything I ever knew about cinema and actually learn something absolutely new. Working with the two of them, actually Anushka and I did very few days of work, but the few days were memorable. And Ranbir actually co-directed the film with Anurag, where I'm concerned, because Anurag would give me one instruction and Ranbir would give me 3 others. Most of my scenes were with him, so I felt I was being directed by him as well. And I have to say, Ranbir has the makings of a great filmmaker, which is a great fallback plan for him if all things do fail. I have to say a big word to Phantom, which I think has been putting out such tremendous content almost about 3 or 4 times a year. I think truly this film will kind of cement and seal that when it comes to new age path-breaking content, Phantom is definitely the one-stop shop. So I'm going to now pass the mic on to Anushka, who's going to sing a song like she does on stage. No. I think Karan has said a lot and we all are in agreement, as Ranbir was yet again directing Karan and saying, let's open the floor for questions. I would like to now call this press conference open. Anushka ji, this is Rajinder Singh from Makarana magazine. It's a Bollywood magazine. पहला सवाल तो आपसे मेरा अनुराग जी से था, वो मैं कर लूँगा बाद में. आपसे करता हूँ कि आपने NH10 की, PK की, अब आप हैट्रिक में आपका क्या इरादा है? हैट्रिक में क्या इरादे तो बहुत अच्छे हैं और ऐसे सारे आसार लग भी रहे हैं कि ये पिक्चर भी लोगों को खूब पसंद आएगी, लेकिन बाकी तो हमको देखना पड़ेगा 15 मई को रिलीज़ के बाद लोग क्या सोचते हैं. लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और प्यार से इस फिल्म को बनाया, हर एक इंसान ने, हम एक्टर्स ने, फिल्म मेकर जिन्होंने इस फिल्म को पुटअप किया है, जो इस स्टेज पे हैं और जिन्होंने जो लोग ने इस फिल्म पे काम किया है. सो वी जस्ट होपिंग कि जिस प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है और जितना बिलीफ हमें था वो लोगों को देखने को मिलेगा जब वो फिल्म देखेंगे. थैंक यू. अनुराग को. अनुराग, थैंक यू. अनुराग जी, आपने खासकर करण जी में क्या बात देखी कि इतना ज़बरदस्त रोल कर पाएंगे? जरा बताइए, आपने कैसे कन्विंस किया, वो कैसे तैयार हुए? आप क्या है? हेलो, आपने मुझ में खामी क्या देखी कि आपने ये सवाल किया? आपने बहुत दिख नहीं रहा इतना सेक्सी सा आदमी हूँ, कोई भी कास्ट करेगा मुझे. उन्होंने आपके बारे में, बैंड्रा के बारे में बताया. पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में सेक्सी हैं, लेकिन आपने काम बड़ा अच्छा किया. तो आपने क्या देखी बात? आपने ट्रेलर देखा? बहुत अच्छा हुआ. और ट्रेलर में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया. अगर वो आपने देखा, वो एक्चुअली ट्रेलर है. आप जब फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी. मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ. करण जी को मैं नरेट करने गया था, उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी. जब मैंने करण को कास्ट किया, पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया, क्योंकि वो रोल जानते थे. उन्होंने कहा, दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ बिकॉज ही इज योर खम्बाटा. ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला. आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप बाय द वे, क्योंकि मैंने ये पिक्चर 11 रुपए में की है. मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड. करण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए. हाँ, मुझे 11 रुपए, बाकायदा 11 रुपए का चेक मुझे मिला है फैंटम से, तो इसलिए मैं इंस्पायर्ड हूँ और थोड़ा सस्ता भी. बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट बाय Kashyap साहब. No, I'm so happy he said yes to the film, and when you see him in the film,
you'll see that there's nobody else who could have been Khambata. हाय रणवीर, आलोक हियर फ्रॉम OFM, आपके लेफ्ट में सवाल है कि 60s का लुक था आपका, जॉनी बलराज बनना था, तो एग्जैक्टली जब हम ये पोस्टर देखते हैं और आपको देखते हैं तो कितनी प्रिपरेशन आपकी खुद की थी इस पर्टिकुलर रोल के लिए? Good evening, ladies and gentlemen. This film starts in the 50s and 60s. Of course, superficial references तो बहुत थे. He wanted to, refer to Robert De Niro from Raging Bull, Back Home, Kishore Kumar, Raj Kapoor. But those were just superficial references. जहाँ preparation की बात है, I think the entire technical side of Bombay Velvet did so much of research for 8 years. जहाँ sets की बात है, जहाँ cinematography है, if you see the making also, a lot of work has gone. So when 3 of us came on set, it was very easy for us because we were transported into this world of 50s. We came in hair, costume, wardrobe, and it just felt like it. जो trams बनाए थे, the junior artists, intricate details like जो Bombay Velvet में जो plates थे, napkins था, Rosie का जो green room था, उसमें the small properties. I think a lot of detailing has gone by the technical side, and I think all the research work, all the preparation that an actor should do was done by them. So I think that really helped us a lot. अनुराग, प्रमोशन में बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कब प्रमोशन शुरू होगा, इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि हार्डली 15-18 दिन बचे हुए हैं। नहीं, प्रमोशन शुरू हो चुका और हम लोग का एक बहुत फर्म बिलीफ रहा है किसी भी फिल्म के लिए की प्रमोशन टाइम पीरियड जो है वो इतना ही होता है, बाकी सब जो है आपका वो खामखा होता है, वो आप अपने आप को खुश करते हो। जैसे जब आप देखो बम्बई के अलावा कहीं शहर में होर्डिंग्स नहीं लगते हैं, और जब होर्डिंग्स कहाँ लगते हैं वो हीरो के घर से लेके जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक लगते हैं, और प्रोड्यूसर के घर से जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक लगते हैं, वो अपने आप को खुश करने के लिए होते हैं। तो हम लोग ने पहले से ही डिसीजन ले लिया था कि हम ये सब चीज़ें दूर रखते हैं और हम लोग लेट्स फोकस ऑन रियल प्रमोशन और जिस तरह से करना चाहिए। तो इट्स वेरी स्ट्रैटेजाइज्ड एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर बाय द होल टीम, और बहुत ही प्री डिसाइडेड था। इसीलिए कोई भी कुछ भी कह रहा था हम लोग ऐसे शांति से क्यों बैठे, बिकॉज़ हमें मालूम हम कर क्या रहे हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू पुट आउट देयर। रणबीर और अनुष्का दोनों से सवाल है कि गीत है मोहब्बत बुरी बीमारी, इस वर्ड पे कितना इत्तेफाक रखते हैं हम दोनों? मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी, मोर देन प्लेग, डेंगू, इससे ज़्यादा तो मोहब्बत बुरी बीमारी होती है। बट आई थिंक द प्ले ऑफ वर्ड्स, अमिताभ भट्टाचार्य जी के बोल हैं, एंड आई थिंक द वे ही इज रिटन एंड यूज्ड मोहब्बत बुरी बीमारी, आई थिंक इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि आप यू आर टेकिंग, आप मजाक उड़ा रहे हो उसका, एंड तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे लिए मोहब्बत बुरी नहीं, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक इन फन वे मोहब्बत है एक बीमारी, बिकॉज आप बीमार पड़ जाते हो, यू आर जस्ट इन दैट स्टेट। तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है बिकॉज यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट स्टेट, तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी। अनुष्का, यू वांट टू? आई एग्री विद हिम, लेकिन कभी-कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वेरी क्या कुछ ओरिजिनल तबीयत खराब होती है अच्छा भी लगता है कभी जब तबीयत खराब होती है, कैन रिलैक्स, आराम से लेटे हुए हो और कोई मतलब ज़्यादा कुछ करने को नहीं है and all that, so that is also good. I don't know what आदमी बुखार में इतना बिस्तर पे नहीं लेटता जितना मोहब्बत में पड़ा रहता है। But more than that, it's play of words more than anything else. Because इन दोनों के जो प्यार है वो इतना passionate है, और इनफैक्ट इस फिल्म में जब आप देखेंगे इनकी जो लव स्टोरी है, ये perhaps if I can take the liberty of saying so, ज़्यादातर हमने नहीं देखा है ऑन स्क्रीन जो इनका प्यार है जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वही प्यार फिर इनकी वीकनेस भी बन जाती है, बिकॉज there's no need that they have from one another, it's unconditional love. तो कभी कभी वो भी उनकी एक उनकी लाइफ में एक मुसीबत बन जाती है, तभी गाना का नाम है मोहब्बत बुरी बीमारी. So it's more like the reference to the film, and that's why the play of words. मेरा सेटिस्फेक्शन मैं तो मुझे कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था मेरे लिए, कि मैंने कभी किया नहीं था. मैं सबसे कहना चाहूंगा टेक्निकली ये तो डेब्यू है ना मेरा. अरे विकास वेल इज ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन. विकास वेल, प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू. करण सर, करण, अनुष्का, इस फिल्म के बाद कोई ऑफर मिला है करण आपको? इस फिल्म हाँ? के बाद कोई ऑफर्स मिले होंगे फिल्म के लिए आपको ऑफर? एंड वुड यू बी डायरेक्टिंग योरसेल्फ इन फ्यूचर? नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं खुद को लूं फिल्म में. वो उसको काटा था, उसने ले लिया. मैं खुद को क्यों लूं? आई कांट बी माई ओन लायबिलिटी. अगर किसी और को भी पैसे लगाने मुझ पे वो लगा सकते हैं, मैं कर लूंगा. अभी तक एक ही आया था. नहीं, मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में. वो करना नहीं चाहिए. लेकिन आई एम ओपन to offers, of course. I'm open otherwise also. But
आई एम ओपन टू ऑफर्स। मैं ये कहना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से, अगर आप लिखोगे प्लीज करण जौहर वुड लाइक टू गेट सपोर्टिंग रोल्स, क्योंकि मुझे कोई डिल्यूजन नहीं अपने आप के कि मैं कोई लीड रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। अच्छे कैरेक्टर रोल्स अगर मिल जाएंगे तो आई थिंक अच्छे खास के पैसे मिल सकते हैं, 11 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे फॉर श्योर। करण Hello, सर, Anushka. सोनिका है। सर, आपको मूवी में जब आपका फर्स्ट पोस्टर आया एज ए विलेन, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आपको देखकर कि फर्स्ट टाइम आप टीवी पे नजर आएंगे सिल्वर स्क्रीन पे, और वो भी विलेन के कैरेक्टर में। तो जब आपने ये कैरेक्टर को हाँ कही, तो किस तरह की आपको लोगों ने क्या बोला कि कैसे लग रहे हैं आप, या कैसे आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेस मिले? और प्लस बॉलीवुड के कोई ऐसे विलेन्स हैं जिनसे आपने रेफरेंसेस ली, कोई ऐसे विलेन जो आपके फेवरेट रहे हो हमेशा से? देखिए, ये विलेन का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे किरदार के लिए, वो थोड़ा काफी ह्यूमरस भी है और इंट्रीगिंग भी। ह्यूमरस क्योंकि मैं कोई मोगैम्बो टाइप ऑफ विलेन नहीं हूँ इस पिक्चर में। ये कोई एक सर्टन काइंड ऑफ, जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ऑल्टर्ड है, वो उस किस्म की मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो अनुराग ने कंसीव किया। तो मुझे पता नहीं कैसे लोग रिसीव करेंगे, और जब मैंने पहली बार सुना तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि जब अनुराग आए थे मेरे ऑफिस तो एक्चुअली वो जब नरेट कर रहे थे फिल्म, आए तो वो मेरी फीडबैक के लिए नरेट कर रहे थे। हाफ वे थ्रू द फिल्म मैं सोचा था कि शायद मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर की हैसियत से आए हैं, एज ए व्हाट हैसियत। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नरेशन मैंने सुना और मैंने रिएक्ट किया, मुझे कमाल का लगा इनका जो स्क्रीन प्ले था। तो उन्होंने कहा कि विल यू प्ले खम्बाटा, तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे कभी किसी ने फुल फ्लेजेड पार्ट कभी ऑफर किया नहीं। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कह रहा है। देन ही टोल्ड मी नसीरुद्दीन शाह वाज इन द रनिंग फॉर दिस रोल। तो मेरी और भी, मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। तो उसके बाद क्योंकि टू बी कंपेयर्ड ऑन द, टू बी इन द रनिंग फॉर अ रोल दैट नसीरुद्दीन शाह, वो एडिड प्रेशर था। The only reason I really thought I'd do it, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि लाइफ में मुझे कोई विलेन का रोल कभी ऑफर नहीं करेगा एज एन एक्टर, until I'll get the opportunity of being directed by Anurag and working with Ranbir. And I thought that was the biggest. और जब आप देखोगे पिक्चर तो आप ये डेफिनेटली आप सोचोगे कि जो कैरेक्टर है वो शायद मैं कर सकता था, वो मैंने नहीं देखा था, ये विजन सिर्फ अनुराग का था। आई होप इट वर्क्स आउट, आई डोंट नो। ये एनीवे मेरा क्या है, आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स। अगर ये फ्लॉप हो गया मैं और भी कम है जमाने में। डिजाइन करता हूँ, जूते डिजाइन करता हूँ, फैशन टिप देता हूँ, लाइक ऑलराउंडर। थैंक यू। सर, बॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स की तरफ से कैसे कमेंट्स आपको मिले? कोई बॉलीवुड की आपने जो फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, उनकी तरफ से कैसे? बॉलीवुड में किसके फ्रेंड्स होते हैं? इंसान होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते। वो क्या कहेंगे, वो तारीफ, मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं, फिर ट्विटर पे लिख लेते हैं अगर कोई खराब बात करनी हो या पीठ के पीछे। अभी हमने जो किया है वो सिर्फ जो आप हो मीडिया, फेमस ऑफ द मीडिया, जो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूँ तो आई ऑलवेज थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ द मीडिया। तो मैं आप सबकी राय सुनना चाहूंगा। मैं अभी इंडस्ट्री वाले से क्या पूछना। करण, अगर कभी आपको अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ तो किस रोल में आप रखेंगे अनुराग? मैं नहीं लूंगा अनुराग को। क्यों? नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूँ। मैं अनुराग को क्या लेके क्या कर लूंगा? पिक्चर नहीं बनाते। मैं पागल हूँ। हम एक दूसरे को, I was going to say something worse. I don't know मेरा क्या हो गया, मैं कुछ भी कहूँ कोई और मतलब निकलता है। लेकिन नहीं, मैं अनुराग को, वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लूँ। मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो। अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है? वो गैंग्स ऑफ वसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में। वो अब्रॉड में फिल्में नहीं शूट करती अनुराग को, सॉरी।